हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ये मेरी वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, वेदर दे आर स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग, सभी पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड फॉर सम अदर प्रोफेशनल्स ऑल्सो टू होम दिस पॉलिसी विल गोना इफेक्ट इन सम वे और द अदर। तो आइए जानते हैं उन सब चेंजेस के बारे में जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाएंगे इंडिया में। जो सबसे पहला और सबसे मेजर जो चेंज है वो है द ब्रेकडाउन ऑफ 10+2 सिस्टम टू 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस नए सिस्टम के अंदर जो हमारी 15 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है उसको 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। जो पहली स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज है, वो 5 ईयर्स की होगी। उसमें जो क्लासेस इंक्लूड की गई हैं वो हैं प्ले स्कूल, नर्सरी, केजी, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। इस स्टेज के अंदर जो मेन फोकस होगा वो होगा प्ले बेस्ड लर्निंग के ऊपर। मींस बच्चों को खेल कूद के साथ सब कुछ सिखाया जाएगा, उन पर जो स्टडी का बर्डन है उसको कम कर दिया जाएगा। एंड और साथ ही साथ जो फोकस होगा वो उनकी लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने का भी होगा। और इस स्टेज का जो सिलेबस होगा दैट विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीईआरटी नाउ। जो सेकंड स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 3 ईयर्स की, और उसमें जो क्लासेस इंक्लूड की जाएंगी वो हैं क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके अंदर स्टूडेंट की लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी स्किल को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस स्टेज का वो ये कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इस स्टेज के अंदर दैट विल बी योर होम लैंग्वेज और मदर टंग, और यू कैन से लोकल लैंग्वेज। द स्टेट गवर्नमेंट कैन adopt a 3 language policy also, but that depends on the stage whether they want to adopt a 3 language policy or not. At present we are having a 2 language policy, that is English and Hindi only, but now the state can have the option to adopt one more language in their curriculum, so that student can learn one more language to increase their efficiency also. But that totally depends on state whether they want to adopt it or not. The next stage that we have is middle stage. Its duration is also of 3 years, and it includes the classes 6th to 8th. In this, the main focus is to give practical exposure to the students. Here, the one thing which they have done is the vocational training. And some of the courses which includes the vocational training are carpentering, electrician, pottery making, gardening, and etc. Here, the students will also get training for these vocational courses also. And one more thing which is quite interesting, that is during this training, during this internship, students need not to carry the school bags to their schools. There will be 10 days bagless periods. So you don't need to carry the school bags, which is quite interesting for the students now. And coding will also gonna start from class 6 also, which we used to learn in our college days. Now it's a part of the school, and that's too from class 6 also. Each and every child needs to opt for one vocational course, and this vocational course will also be made available online. The last stage that we have is secondary stage. Its duration is 4 years, and it includes the classes from 9th to 12th. इस स्टेज के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है वो ये कि नाउ स्टूडेंट कैन चूज देयर सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, one subject from the arts field and one subject from the science field. Earlier there were 3 streams, that is arts, commerce and science. If a student wants to opt for chemistry, he can't opt for political science, but now he can do so. He can opt physics as well as political science. The subjects can be opted by a single student at one time. There is no separation between these now. So this is quite interesting actually. The next change that we have is that undergraduate degree 3 or 4 years now have multiple exit options. अगर किसी बच्चे को 4 साल की जो उसकी डिग्री है अगर वो पूरी नहीं कर पा रहा किसी कारण से, उसको वो डिग्री बीच में छोड़नी पड़ रही है ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज और सम अदर ऑप्शंस। उसमें अभी प्रेजेंटली क्या है, अगर आपने डिग्री बीच में छोड़ दी तो आपको उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। बट नाउ अगर किसी बच्चे ने 1 साल कंप्लीट किया तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसने 2 ईयर्स कंप्लीट किए तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर उसने 3 ईयर्स कंप्लीट किए तो उसे एक बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर उसने पूरे कंप्लीट 4 ईयर्स किए हैं
तो उसे बैचलर डिग्री भी दी जाएगी, और अगर साथ साथ उसने इसके अंदर इन 4 सालों के अंदर अगर कोई रिसर्च भी की है तो उसकी डिग्री में उस रिसर्च का सर्टिफिकेट भी उसको दिया जाएगा. The next change that we have is setting up of Higher Education Commission of India, that is HECI. Now it is a single body for higher education excluding medical and legal education. ये एक सिंगल बॉडी है जो सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी हायर एजुकेशन के लिए, और अब यूजीसी और एआईसीटी को अब हटा दिया जाएगा और ये सिंगल बॉडी रहेगी उन दोनों की जगह पे. द नेक्स्ट चेंज दैट वी हैव दैट देयर इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स. हमने इसके बारे में अभी पहले भी बात की वीडियो में. अब इसके अंदर क्या बेनिफिट है, अगर एक बच्चे को म्यूजिक पसंद है तो अब उसकी वेटेज जो है वो इक्वल होगी उसके एकेडमिक्स के भी. इफ अ स्टूडेंट डोंट वांट टू लर्न एनी सब्जेक्ट एंड इफ ही वांट्स टू लर्न म्यूजिक, और इफ ही इज गुड इन स्पोर्ट्स, और इफ ही इज गुड इन एनी ड्रामा प्ले एटसेट्रा, सो उसकी जो वेटेज है उसके एकेडमिक्स की अब इक्वल दी जाएगी, उनके बीच में कुछ सेपरेशन नहीं किया जाएगा. सो एक बहुत अच्छा मूव है हर बच्चे के लिए. अगर कोई अपनी एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो वो फिर भी एट पार हो सकता है उन दूसरे बच्चों के जो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, प्रोवाइडेड अगर उसमें एक साथ में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट जुड़ा हो. द नेक्स्ट चेंज दैट वी हैव इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. अब एक ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना दिया गया जिसे शॉर्ट में एबीसी कहा गया. इसके अंदर क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम कॉलेजेस में जाएंगे हायर स्टडीज़ के लिए तो वहाँ पे हमें हमारे मार्क्स के साथ कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे, और वो क्रेडिट्स जो हैं वो डिजिटली स्टोर कर लिए जाएंगे थ्रू द establishment of academic bank of credit. Now one more interesting thing that we have in this policy is that there will be common entrance exam CEE for admissions in any university. Now a student don't have to prepare for different tests for getting admission in different universities. Now there will be one exam only, and through that exam you can get admission in any of the universities. This will reduce the burden on the students. And here the responsibility for conducting this exam has been given to National Testing Agency, that is NTA. The next change that we have, that now there will be preschool section in Kendriya Vidyalayas, in KVS. In the present scenario, KVS starts from class first, but now they are looking for providing at least 1 year of early childhood care and education to the KVS and to other primary schools also, particularly in the disadvantaged areas. जो थोड़े पिछड़े एरियाज हैं वहाँ पर अभी स्टार्टिंग में ये कम से कम 1 साल के लिए होगा जो प्री स्कूल होगा हमारा. वैसे तो प्री स्कूल का पीरियड 3 ईयर्स प्रेस्क्राइब किया गया है, बट अभी केवीएस के अंदर ये सिर्फ 1 ईयर के लिए स्टार्ट होगा, कम से कम 1 साल के लिए बोला. दे डोंट हैव प्रेस्क्राइब्ड जस्ट 1 ईयर, दे हैव प्रेस्क्राइब्ड एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम एक, और इट कुड बी 2 और 3. उसके ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आनी बाकी है. द नेक्स्ट चेंज दैट वी हैव नाउ, देयर विल बी NCC wings in secondary and higher secondary schools, and which will be guided under the Ministry of Defense, and the state government has the power to open these NCC wings. So the students who are interested in the defense field can prepare themselves from the school level only. And now there will be a dedicated unit for digital and online learning. The present scenario of COVID-19 affects a lot to the studies of the students, and keeping these things in mind, now they have established a dedicated unit that will look after the digital and online learning. They will build an infrastructure for e-education, that is electronic education, at secondary and higher secondary level. That's a very good move for the students, because if this kind of situation again arises in the country, then education of Indian students will not suffer at all. Now one more interesting thing is that education sector will get 6% of GDP. Earlier it was just only 1.7%. And due to this we can see a lot of development in the infrastructure of education sector that will help a lot. The next thing that we have is that करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस्ड. जो सिलेबस है थोड़ा सा कम किया जाएगा, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं जो हमारी थिंकिंग पावर से, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग से,
एनालिसिस बेस्ड लर्निंग से, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से हमें कुछ सिखाया जाएगा। जो रट्टाफिकेशन है उसको घटा दिया जाएगा। बच्चों की थिंकिंग पावर, नॉलेज पावर जो होगी उसको अब टेस्ट किया जाएगा। रट्टाफिकेशन का सिस्टम अब बिल्कुल भी वो नहीं चाहते यहाँ पे। जो नेक्स्ट चेंज आया है हमारे पास वो ये, नाउ देयर कैन बी पॉसिबली 3 मॉडल्स फॉर कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम्स। वन इज एनुअल, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड मॉड्यूलर। एनुअल जैसे अभी चल रहा था, साल में एक बार एग्जाम होंगे। सेमेस्टर ईयर में 2 बार। और मॉड्यूलर में जो सब्जेक्ट मैथ्स के साथ बिगिन करते हैं उनको 2 लेवल पर रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो एग्जाम्स हैं वो 2 पार्ट में हो सकते हैं। वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज डिस्क्रिप्टिव। मतलब एक ऑप्शन टाइप एग्जाम होगा और एक जिसमें आपको पूरे आंसर लिखने होंगे। एंड द नेक्स्ट चेंज, इट्स वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। नाउ देयर विल बी 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। जो अभी तक रिपोर्ट कार्ड हमारे पास आती थी उसमें हमारे मार्क्स को हाईलाइट किया जाता था, बट अब मार्क्स के साथ साथ हमारी स्किल्स और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। द नेक्स्ट चेंज इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ। एनआरएफ मीन्स नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। its goal is to enable culture of research, and it will be governed independently of the government by a rotating board of governors consisting of very best researchers and innovators across their fields. And the next change is best universities to set up campuses in other countries. इसमें क्या होगा, जो इंडिया की हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो अपने कैंपसेस, अपने ब्रांचेस जो हैं अब आउट ऑफ इंडिया भी ओपन कर सकेंगी। और साथ ही साथ जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ होंगी पूरे वर्ल्ड की, टॉप 100 पूरे वर्ल्ड की, नॉट ऑफ इंडिया, उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो इंडिया में आकर ऑपरेट कर सकें। दैट्स रियली अ वेरी गुड मूव। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट is HRD Ministry to be renamed as Education Ministry. HRD stands for Human Resource Development. अब उसका नाम HRD Ministry से हटाकर Education Ministry रख दिया जाएगा। That's all we have for today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।